Good morning, 12th class. How are you all? Hope you all are good. So class, we were on chapter number 7, mineral and energy resources. हमने बात कर ली थी what exactly is mineral, how do we define it, why are they important. We talked about the various categorization, and till our previous class we have done about the ferrous and the non-ferrous minerals. So today we need to start with our energy resources. Okay, so when we started the energy resources, we had a kind of brief discussion on few of the important, you can say, jo resources are relating to these, and now we'll study these in greater detail. Okay, so let us now start with the energy resources. Now we know that these mineral resources are really important, and if we talk in terms of today's times, every sector requires energy, every sector requires fuel, every sector requires these mineral fuels for generation of powers. So whether it is agriculture, industry, transport, or any other sector of our economy, we know that the one of the most essential thing required is the generation of power, जो कि mineral fuel से ही हो सकता है. And even if without telling, if I ask you कि what do you understand by mineral fuel, या मुझे कुछ example दो, it will be easier for you to just tell me कि ma'am coal, petroleum, natural gas, etc. Okay, and all of them are fossil fuels. Even nuclear energy minerals are sometimes included as the conventional sources of energy. What do we mean by conventional sources of energy? Basically हम बोल सकते हैं जिनका amount finite है, limited है, या हम बोल सकते हैं these are the exhaustible resources. As in class 10th we studied that on the basis of exhaustibility we can divide the resources into renewable and non-renewable. तो जो exhaustible वाले होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. नाउ अब कन्वेंशनल सोर्सेज में सबसे पहले अपने पढ़ लेते हैं अबाउट कोल. Now we know that coal is one of the most important mineral, and it is mainly used for generation of the thermal power and also for smelting of iron. Now needless to say, obviously we know thermal का क्या मतलब होता है? Relating to heat. So मतलब heat generate करने के लिए, and everywhere for power coal is used in most of the industries, and especially it is used in smelting of iron ore. We know that iron is extracted from the iron ore, and इसमें smelting का process चाहिए होता है जिसमें the iron ore is melted, जिसमें से then iron is extracted out. So in processes में coal is required. Then coal, where does it occur, and in you can say which time period वाले मतलब deposits में हमें coal मिलता है. Coal generally occurs in the rock sequences made of two geological periods. Namely एक तो Gondwana वाला period, and secondly अगर हम बात करें in the tertiary deposits. And tertiary period I already told you around 66 million से 2.6 million years के बीच वाला जो time period है, उस टाइम पे जो फॉर्म हुए थे वो. अब अगर हम देखें अराउंड 80% ऑफ द कोल डिपॉजिट्स जो है इंडिया के, वो है बिट्यूमिनस टाइप्स. ठीक है. नाउ अगेन बिफोर मूविंग ऑन टू डिटेल, एज आई सपोज ऑल ऑफ यू नो, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर जूनियर क्लासेस. हमने पढ़ा हुआ है कि जो कोल है उसके अलग अलग टाइप होते हैं, एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, lignite, and sometimes peat is also included, basically on the basis of the carbon content in that particular type of coal, ताकि उससे ज्यादा heat generate हो. इसलिए तो anthracite best quality होता है, next bituminous होता है, then lignite, and then the others जो होते हैं जिसमें बहुत कम iron content होता है. तो bituminous type का जो है वो अपने इंडिया में उसके deposits है, and this is basically of हम देखेंगे नॉन कोकिंग ग्रेड. एंड नॉन कोकिंग ग्रेड बेसिकली क्या होता है? जिसमें एश का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और जनरली ये थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होता है. ओके, एंड दिस इज बेसिकली बिकॉज इट जनरेट्स लॉट ऑफ हीट. ओके, तो जबकि कोकिंग कोल जो है इज बेसिकली टाइप ऑफ कोल जिसको हीट करने पे अगर एयर की एब्सेंस हो तो वो चेंज हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है, कोक बन जाता है, इस टाइप से.
मेनली यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड नॉन कोकिंग कोल्स जो है उनमें एश कंटेंट ज्यादा होता है और जनरली थर्मल पावर प्लांट्स में होते हैं, स्टीम कोल्स यूज होते हैं. So 2-3 things you need to remember. 80% of the coal deposits जो इंडिया के वो bituminous types हैं और नॉन कोकिंग ग्रेड के. अब सबसे इम्पोर्टेंट हम बोलेंगे कहाँ पे लोकेटेड है डिपॉजिट्स कोल के, तो हम देखेंगे गोंडवाना कोल फील्ड्स के अकॉर्डिंग दामोदर वैली एरिया जो है इंडिया में, वहां पे अपने को कोल डिपॉजिट्स मिलते हैं. और ये एरिया दिस लाइज बिटवीन द झारखंड बंगाल कोल बेल्ट एंड अलोंग विद दिस अगर हम देखें एंड वी टॉक रिगार्डिंग दिस other areas, तो important coal fields are in the region of रानीगंज, झारिया, बोकारो कोल फील्ड बहुत फेमस है हमारा, गिरिध एंड करणपुरा. ठीक है, तो हमने पढ़ा एक तो झारखंड बंगाल जो कोल बेल्ट है एंड देन ये तो पूरा बेल्ट है और इसमें जो कोल फील्ड्स बेसिकली हम देखेंगे रानीगंज, झारिया, बोकारो, गिरिध और करण. इसमें से झारिया जो है वो लार्जेस्ट कोल फील्ड है. अगेन इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन. Jharia is the largest coal field and then the second is Raniganj. ठीक है. Other river valleys associated with coal are Godavari, Mahanadi, Son. And the most important coal mining centers मध्य प्रदेश में है सिंगरौली and certain part जो इसके उत्तर प्रदेश में भी है, कोरबा इन छत्तीसगढ़, तालचेर एंड रामपुर इन उड़ीसा, चंद्रवाड़ा, कामठी एंड बेंडर इन महाराष्ट्र and Singareni in Telangana and Pandur in Andhra Pradesh in the southern portion of India. So हमने नॉर्थ से साउथ की तरफ देख लिया है बेसिकली कहाँ कहाँ अवेलेबल है. सबसे ज्यादा झारखंड बंगाल कोल बेल्ट में कोल फील्ड्स है रानीगंज, झारिया, बोकारो, गिरिध एंड करणपुरा. रानीगंज, झारिया एंड बोकारो तो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ भी है इन आवर जूनियर क्लासेस. इसके अलावा झारिया ऑब्वियसली सबसे बड़ा वाला है, नेक्स्ट अपना रानीगंज है, उसके अलावा ये सारे हैं बोकारो, गिरिध वगैरह. गोदावरी, महानदी और सोन रिवर के आसपास भी है, मध्य प्रदेश में है अपने सिंगरौली एरिया एंड उत्तर प्रदेश, और कोरबा छत्तीसगढ़ में, तालचेर और रामपुर उड़ीसा में, चंद्रवाड़ा, कामठी एंड बेंदर महाराष्ट्र में, और साउथ में अपने सिंगारेनी तेलंगाना और पन्नूर जो है आंध्र प्रदेश में. ओके, so let us talk about few more important things and we'll come back to this box. जो टर्शरी कोल हम देखेंगे जो दैट अकर इन दिस एरिया एंड स्पेसिफिकली अगर हम देखें असम वाले एरिया में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड नागालैंड, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड नागालैंड. इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दरनगिरी, चेरापूंजी नाम आपको पता होगा, चेरापूंजी one of the area which receives lot of rainfall, Melong, Langrin in Meghalaya, Makum, Jaipur, Nazira in Upper Assam, Namchik, Nampuk, Arunachal Pradesh and Kalapot in Jammu and Kashmir. ठीक है, सो ये याद रखना, ये टेरिटरी वाले वो गोंडवाना वाले थे. यहाँ पे हमने देखा असम, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड. ठीक है, मेघालय, नागालैंड एंड मतलब कौन से स्पेसिफिक एरियाज अगर हम देखें, दरनगिरी, चेरापूंजी, मेलोंग एंड नागरिक मेघालय में, माकुम, जयपुर, नाजरा इन अपर असम, नामचिक, नमफुक अरुणाचल प्रदेश एंड कालाकोट इन जम्मू एंड कश्मीर. इसके अलावा ब्राउन कोल या लिग्नाइट जो है वो हम देखते हैं कुछ कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात एंड जम्मू एंड कश्मीर. कौन सा है ये? ब्राउन कोल या फिर इसको क्या बोलते हैं, लिग्नाइट. ठीक है, इन सर्टेन कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड गुजरात एंड वी आल्सो फाइंड इट इन सम पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, नाउ एज वी वर लेफ्ट विद दिस बॉक्स, लेट अस टॉक अबाउट दिस बॉक्स. नाउ इन दिस बॉक्स दे आर जस्ट टेलिंग अस दैट ये जो एरिया है सिंगारेनी कॉलोनीज, जो हमारी कंट्री का प्रीमियर कोल प्रोडक्शन कंपनी है, ये स्टिल कैनरीज को यूज करती हैं टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डेडली कार्बन मोनोऑक्साइड इन अंडरग्राउंड माइंस. एक्चुअली क्या है, यहाँ पे माइनर्स कोलैप्स एंड ऑफन डाई इवन इफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रेजेंट इन
the air. So miners जो है, though they speak lovingly of the canaries, the underground experience is not at all pleasant for the birds. Canaries actually are birds. इनको क्या करते हैं, ये जो माइंस है ना, इनमें इन बर्ड्स को पहले बेचते हैं, ठीक है, बिकॉज अगर इन माइंस में सीओ का प्रेजेंस होता है तो बर्ड्स जो है दे शो that they are facing certain kind of problem, distress symptoms होते हैं, जैसे ruffling of feathers, feathers को बहुत जल्दी जल्दी move करते हैं, तेज तेज जैसे chopping करते हैं, कभी कभी loss of life, that means they show clearly कि यहाँ पे poisonous gases है और specifically carbon monoxide है. इनका रिएक्शन जनरली अकर होता है जब 0.15% ऑफ CO हो एयर में, and if the content is 0.3%, the bird shows immediate distress and एकदम fall off हो जाते हैं from its perch in 2 to 3 minutes. तो ये जो birds हैं, they are good indicator in air containing more than 0.15% CO, said a coal miner. Now you understand they are doing it because miners जो है, बहुत बार ऐसे होता था कि जब वो जाते थे और अगर CO का परसेंटेज ज्यादा है एयर में, they used to feel very, you can say in distress में, और बहुत प्रॉब्लम होती थी, कभी कभी अनकॉन्शियस हो जाते थे वो, कभी कभी they used to feel lot of प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, बेहोश हो जाते थे, और ज्यादा कुछ भी ऐसे रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती थी. तो इसीलिए कैनेडीज को एक कस्टम चला था बहुत पुराने टाइम पे कि पहले उनको बेचते थे, इसीलिए माइनर्स उनके लिए बहुत अच्छा बोलते हैं कि ये जाते हैं तो हमें पता चल जाता है, बट इट इज नॉट अ गुड थिंग ऑब्वियसली फॉर द बर्ड्स. जबकि अभी कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए नई नई मशीन्स आ गई हैं, जो उनका कितना कॉन्सेंट्रेशन है एयर में, 10 ppm as high as 1000 ppm से वो बता सकते हैं. बट डिस्पाइट दिस जो माइनर्स है वो बर्ड्स को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले के टाइम पे और जो बाकी उनसे पहले जो बर्ड्स थी, उन्होंने माइनर्स की लाइफ बचा रखी है. So this is something we can say a bit problematic, obviously causing harm to the birds, but somewhere this is again still followed, and you should remember the name. It is Singareni Collieries, और ये जो जगह है, as I told you that one of the important, हम बोलेंगे जो कोल कंट्रीज प्रीमियम कोल प्रोडक्शन जो है कंपनी, वो बेसिकली दिस इज द एरिया. ये बेसिकली समवेयर हम देखेंगे गोदावरी वैली के आसपास है, तेलंगाना साइड. ओके, सो कैनेडीज अभी भी यहाँ यूज होती है, जबकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है. सो नाउ एक्चुअली दे शुड स्विच ऑफ टू द अदर वन. Now let us quickly talk about the petroleum and the natural gas as well very quickly. पेट्रोलियम जो है, हमें पता है क्रूड पेट्रोलियम जो है, इसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ऑफ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, जो अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन, कलर भी अलग होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल कॉम्पोजिशन. ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पेट्रोलियम पता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, स्पेशली कंबस्टन से रिलेटेड जब हम बात करते हैं. और कंबस्टन से क्या मतलब है, बेसिकली बर्निंग ऑफ मेटल, जिससे कि हीट जनरेट होती है, उससे रिलेटेड. ओके, सो दिस एज वी नो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ using it as a fuel in automobiles, railways, aircraft, and इसके बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स भी हैं जिनको हम प्रोसेस करते हैं इनटू पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, such as fertilizers, synthetic rubber, synthetic fiber, medicines, vaseline. मतलब हम बहुत सारी चीजों में नॉट ओनली पेट्रोलियम बट उसके जो बाय प्रोडक्ट्स है वो भी यूज करते हैं. And here comes one important 1 marks question, and this question is basically कि why is petroleum called as the liquid gold? Simply because एक तो इसकी बहुत scarcity हो गई है, इसका percentage कम हो गया है, and we know that it is used for various purposes. तो इसके diversified uses है. So you need to remember this, that petroleum is referred as the liquid gold simply because of its scarcity and also because of its diversified use. Okay, so now where is it where it is found in India, that is also that we should just quickly go through.
डाइल्यूट पेट्रोलियम जो है इट अकर्स इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। अगेन हमें पता है सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्म होती है, लेयर बाय लेयर एंड टर्शियरी पीरियड एज आई अर्लियर टोल्ड यू बेसिकली 66 मिलियन ईयर्स से 2.6 मिलियन ईयर्स तक के टाइम पीरियड वाले टाइम। ठीक है, तो ऑयल एक्सप्लोरेशन और जो प्रोडक्शन है उसको इंडिया में सिस्टमैटिकली स्टार्टअप किया गया था बाय ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, जो सेटअप था इन विच ईयर इन 1956। ओके, सो जस्ट रिमेम्बर दिस डेट आल्सो। देन उसके बाद दिग्बॉय इन असम, अगेन वेरी फेमस, दिस वाज द ओनली ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन अगर हम देखें नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, बट 1956 के बाद चीजें चेंज हो गई। रिसेंट ईयर्स में अगर हम देखें तो नए ऑयल डिपॉजिट्स अपने को मिले हैं इंडिया में, इंडिया के एक्सट्रीम वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में। अगर असम की हम बात करें, दिग्बॉय तो हमने बात कर ही ली है, इसके अलावा नाहर, कटिया एंड मोरन जो है वो इम्पोर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। एंड देन मेजर ऑयल फील्ड्स अगर हम बात करें गुजरात में तो सबसे पहले आ जाता है अंकलेश्वर। प्लीज रिमेम्बर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वन ऑफ द मेजर ऑयल फील्ड्स ऑफ गुजरात इज अंकलेश्वर। एंड देन इससे रिलेटेड अगर हम और देखें, सो वी विल हैव अ idea about talking like these areas: Kalol, Mehsana, Navagaon, Kosamba and Lunej. मुंबई हाई, नीडलेस टू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने बहुत बार इसके बारे में पढ़ा हुआ भी है। दिस लाइज 160 किलोमीटर ऑफ मुंबई and was discovered in 1973 and its production basically started in 1976. ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो अपने को एक्सप्लोरेटरी वेल्स इन कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी बेसिन में भी मिले हैं अगर हम इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट की बात करें। याद रखना, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी बेसिन ये बहुत बार आते हैं ना। ओके, देन ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज वेल is crude oil and it contains many impurities. पता है ऑयल से जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो बहुत impurities होती है, इनको डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते, इनको रिफाइन किया जाता है। रिफाइनरी हमारी 2 टाइप्स की है, एक तो है फील्ड बेस्ड एंड मार्केट बेस्ड। ठीक है, I'll just explain you, it is not written in the book, but field based and market based. field based वो होती है तो जहाँ पे वेल होता है उसके पास ही रिफाइनरी सेटअप होती है। मार्केट बेस्ड होती है, पाइपलाइंस के थ्रू या शिप्स के थ्रू दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसको, और उसके बाद इनको क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। ठीक है, दिग्बॉय एक एग्जांपल है बेसिकली अगर हम देखें फील्ड बेस्ड का, यानी वेल्स के पास ही, और बरौनी जो है मार्केट बेस्ड। ओके, नाउ अगर हम, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट the conventional one, small paragraph is given relating to natural gas, ये भी देख लेते हैं जल्दी से। जो हमारा नेचुरल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 1984 में सेटअप हुआ था पब्लिक सेक्टर में, अंडरटेकिंग टू ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट नेचुरल गैस। एंड दिस इट इज ऑब्टेन्ड अलोंग विथ ऑयल फील्ड्स में साथ ही ये भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सक्लूसिव रिजर्व जो है इनके, दे आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न कोस्ट एज वेल एज तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये ईस्टर्न कोस्ट में है। एंड देन त्रिपुरा हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में है, राजस्थान में, ऑफशोर वेल्स इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है, आई विल जस्ट रिपीट इट अगेन वेरी क्विकली। एक्सक्लूसिव हमारे पास रिजर्व्स जो है ईस्टर्न कोस्ट पे है, as eastern coast में basically है, and then along with that तमिलनाडु, उड़ीसा and आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और राजस्थान में भी है, and offshore wells in गुजरात and महाराष्ट्र। ओके, एक बॉक्स दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो हिंदू में आया था 2006 में, इसमें ये बताया गया था कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन जो है उनको पोटेंशियल जोन्स मिले हैं नेचुरल गैस रिजर्व्स के। ये हो सकता है यहाँ पे कौन से एरिया में, रमंतपुरम डिस्ट्रिक्ट। रमंतपुरम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो ये सर्वे अभी भी इनिशियल स्टेजेस में है, बट
ऐसा है कि इसकी काफी पोटेंशियल है कि हम यहाँ पे अपने पास अवेलेबल होगी नेचुरल गैस. एग्जैक्ट क्वांटिटी is not known till now, but we will soon be able to know more about this area. And जो results है वो encouraging है as and when जैसे जैसे हमें सर्वे से पता चल रहा है कि कितना यहाँ पे नेचुरल गैस का कंटेंट है. ओके, so with this we complete the conventional energy resources. Now we will talk about the non-conventional and energy resources. Generally जो non हम बोलेंगे which are comparatively renewable, and we will study about them in detail in our next class. Okay. So I think जितना आज किया है clear होगा. हमने conventional sources किया है जिसमें हमने बात किया about coal. We have talked about petroleum and natural gas, and specifically the areas where they are found. Okay. So just go through the portion that we have covered today. Try to make your notes. As I said, एक side minerals लिखो, एक side कहाँ कहाँ मिलते हैं वो लिखो, and it will be helpful for you to learn. Okay. So just give the portion a reading, and if you have any doubt, come back with your doubts. We'll discuss and solve it. Okay. So now meet you all in the next class.